اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن آپ آخری بار اپنی آنکھیں بند کریں گے اور پھر کبھی نہیں کھولیں گے؟ آپ اپنے پیاروں کی آوازیں آخری بار سنیں گے، لیکن آپ انہیں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور جب وہ لمحہ آئے گا، آپ کا جسم تو یہیں رہے گا، لیکن آپ کی روح ایک نامعلوم دنیا کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو اس پہلی رات اور اس کے بعد کے 40 دنوں میں آپ کیا محسوس کریں گے؟ اس ویڈیو میں ہم سب مل کر پراسرار عالم برزخ میں جائیں گے۔ ہم اس سفر کو دیکھیں گے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، لیکن ایک شخصیت اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جدید ترین مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے موت کے بعد کے ہر لمحے کو زندہ کیا ہے۔ آپ کہانی گیٹ پر ہیں۔ چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ پوشیدہ اور پراسرار روح سیریز سے محروم نہ رہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، وہ جسے آپ سالوں تک ٹالتے رہے، وہ جسے آپ نے سوچا تھا کہ کبھی نہیں آئے گا۔ آخری سانس۔ آپ کی زبان مزید بول نہیں سکتی، آپ کی آنکھیں ایک نقطے پر ٹک جاتی ہیں۔ آپ کا دل ایک بار پھر دھڑکتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ ایک سردی آپ کے پیروں سے شروع ہوتی ہے اور آپ کے پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عام سردی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم کو چھوڑنے والی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے موت کو اس طرح بیان کیا، کاش صرف ایک بال کھینچنے کا درد محسوس ہوتا، موت کے بوجھ تلے تو پہاڑ بھی زمین میں دھنس جاتا۔ اور روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موت کا لمحہ ایسا ہے جیسے قصاب کے ہاتھوں ایک زندہ بھیڑ کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ اس لمحے روح کو پیروں سے کھینچا جانا شروع ہوتا ہے، پھر ٹانگوں سے، پھر پیٹ، سینے اور آخر میں حلق تک پہنچتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اس کا ذکر ہے، جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو تمام درد وہیں جمع ہو جاتا ہے۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ جیسے اسے ایک ساتھ چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ ہر خلیہ کرب سے چیخ اٹھتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جڑ سے بال کو کھینچا جا رہا ہو۔ روایات کے مطابق روح شروع میں جسم میں داخل ہونا نہیں چاہتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نکلنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اس کشمکش کے دوران ایک تاریک، اندیکھا وجود آپ کے پہلو میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان ہے، ملعون، جس نے آپ کی پوری زندگی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ آخری بار لوٹتا ہے، لیکن اس بار وہ پانی کا ایک پیالہ لاتا ہے۔ وہ آپ کو ناقابل برداشت پیاس سے آزماتا ہے اور کہتا ہے، مجھے اپنا ایمان دے دو اور یہ پانی لے لو۔ اس لمحے آپ کی پوری زندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے چمکتی ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے گناہ، آپ کے آنسو، آپ کی غفلت اور آپ کی توبہ۔ شیطان سرگوشیاں کرتا رہے گا، آپ کے ذہن کو الجھانے کی کوشش کرے گا۔ روایات کے مطابق وہ آپ کے فوت شدہ والدین کی شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، اور آپ کو کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے پر قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا ایمان سچا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ تاہم اگر آپ شک میں رہے، اگر آپ نے کبھی اپنا ایمان مضبوط نہیں کیا، تو آپ آسانی سے اس دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنے آخری لمحے میں اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی خواہشات اور لذتوں کے لیے اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی اسے چھوڑ دیں گے۔ اس دن لا الہ الا اللہ کہنے کا واحد راستہ یہ ہوگا کہ آپ ایمان کے ساتھ جیے ہوں، سچے ایمان کے ساتھ۔ شیطان کی سرگوشیاں بے اثر ہو جائیں گی، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ اسی حالت میں مریں گے جس میں آپ جیے، اور آپ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس میں آپ مرے۔ جو لوگ ایمان کے بغیر مرتے ہیں، ان کے لیے موت انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ فرشتے پکاریں گے، باہر آ اے خبیث روح، باہر آ جہنم کے عذاب کی طرف، اور پھر روح کو جسم سے نوچ لیا جائے گا۔ پورا جسم کانپے گا، اندرونی اعضاء مڑ جائیں گے،
जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। इस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती, ईमान की कोई कदर बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया, मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीले ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे इज़राइल से ले लेते हैं। वो उसे एक खुरदुनी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? इसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाज़ा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाका से न गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इसका नाम अमाल जमीन के सबसे निचले मकाम सिज्जीन में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा और परिंदे उसे उचक ले गए या हवा उसे किसी दूर की जगह पर उड़ा ले गई। जहां तक मोमिन का ताल्लुक है, कुरान फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अगर आपने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है तो आप मलिकुल मौत और उनके मुआविनीन को नूर के वजूद के तौर पर देखेंगे। फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ऐ पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तू राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और इसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर ग्रोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है? और इसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर गुरोह इस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नामा आमाल नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने इन्हें इसी से पैदा किया है और इसी में इन्हें लौटाऊंगा और इसी से इन्हें एक बार फिर रोजे क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म जमीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है। मुस्तनद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मुर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इस तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं।
आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस से मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप इन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजारते थे, अब एक सादे से कपड़े के टुकड़े से ढके हुए हैं। सबसे सादा, फिर भी शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज़े जनाजा अदा की जाती है, मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है, आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है, कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी गई है, ठंडी, तंग और तारीक। अब ये आपका नया घर है। ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए 2 लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं। कदमों की आवाज़ खामोशी में मद्धम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप 2 पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने देओ कामत नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयुका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कायनात का नूर। माँ किताबुका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है। माँ अमलुका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र, और मुश्किल में भी मेरा दिया हुआ सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन इन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत है। हज़रत अली हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उमर के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। उस रात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उमर थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं, बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे पास कर लिया। अहदीस में ये भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफ़ेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा, उसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूँ, मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोज़े हूँ, मैं रात में तुम्हारे सजदे हूँ, मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूँ, मैं रोज़े क़यामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूँ, तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहाँ तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालो जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है, मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं, तेरे लिए जन्नत है, तेरे लिए मेरी रजा है, मैं तुझसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती,
क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे अमाल क्या थे, मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी इन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है, मिट्टी हड्डियों को दबा जाती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और नीचे की जमीन अजाब का एक तारीक मकाम बन जाती है। उनके लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए इसका अजाब देखते हैं। जहन्नुम की गर्मी और बदबू उन तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उन्हें हर तरफ से दबाती है। जब जमीन तंग होती है तो कोई रहम बाकी नहीं रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र उसे इतना कुचल देगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। दोनों फरिश्तों की आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाज़ें बादल की तरह गरजती हैं, उनके दांत जंगली बैलों के सींगों की तरह तेज होते हैं। उनकी मौजूदगी रूह को दहशत से भर देती है। ये फरिश्ते मुस्कुराते नहीं, वो कोई शफकत नहीं जानते, वो कोई रहम महसूस नहीं करते। क्योंकि आपने हमेशा अपनी नमाज में ताखीर की, आपने ईमान को हल्का लिया, अब वो अजाब को बढ़ाते हैं। मट्टी आग में बदल जाती है, शोले कब्र को घेर लेते हैं, धुआं हवा में भर जाता है। वो शख्स चीखता है, लेकिन आज कोई फरार नहीं। फिर एक और वजूद कब्र में दाखिल होता है। उसका चेहरा खौफनाक है, उसके कपड़े मैले हैं और उसकी बदबू एक सड़ती हुई लाश से भी बदतर है। दहशतज़दा शख्स पूछता है, तुम कौन हो? और वो वजूद जवाब देता है, मैं तुम्हारे आमाल हूं, तुम्हारे गुनाह। मैं वो मवाक़े हूं जो तुमने ज़ाया कर दिए और कभी तौबा नहीं की। मैं वो हूं जो तुमने किया है। और ये वजूद रोज़े क़यामत तक उनके साथ रहता है, उनके दर्द और पछतावे में इजाफा करता है। फिर एक और अजाब शुरू होता है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। इनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया था। उनका हर डंक रूह को उस गुनाह की याद दिलाता है जो उसने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन सांपों में से सिर्फ एक के दांत भी जमीन को छू जाएं, तो कयामत के दिन तक उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सांप कयामत तक अपना अजाब जारी रखेंगे और जब वो दिन आएगा तो अजाब खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ शुरू होगा। इसीलिए कब्र में मौजूद शख्स पुकारेगा, ए अल्लाह, बराहे करम कयामत का दिन शुरू न कर, क्योंकि वो जान लेगा कि उसने अभी जो तजर्बा किया है वो सिर्फ आगाज था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और अपने सहाबा से फरमाया, अगर यहां दफन होने वाला शख्स दुनिया में वापस आ सकता तो वो अपने खानदान से मिलने या अपनी दौलत को मुकम्मल करने की ख्वाहिश ना करता, वो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करता, क्योंकि अब वो समझता है और एक दिन हम भी समझेंगे। ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की, हम एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज्जार से ताल्लुक रखने वाले एक बाग में गए थे। आप अपनी सवारी पर थे कि अचानक जानवर घबरा गया और करीब था कि आपको गिरा दे। हमने देखा कि करीब ही कई कब्रें थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इन कब्रों में मौजूद लोगों को क्यों अजाब दिया जा रहा है? हमने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम एक दूसरे को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब सुनाए जैसा कि मैं सुनता हूँ। फिर आप हमसे मुंह फेर कर खड़े हुए और फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो, और आपने इसे 3 बार दोहराया। कोई दोस्त, कोई भाई, कोई माँ, कोई बच्चा बाकी नहीं रहता, और तब ये वाज़ेह हो जाता है कि ये दुनिया हकीकी जिंदगी नहीं थी।
हकीकी हकीकत अब शुरू होती है। दुनिया सिर्फ एक पर्दा थी और कब्र उसके पीछे का मरहला है। अब अबदियत का पहला दरवाजा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र के सबसे पुरअसरार हिस्से पर, आलम बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर मादी कब्र का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कब्र का उस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें उसे दफन किया जाता है। कब्र या बरज़ख दरअसल एक राहदारी है, दो दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह। ये वो पुल है जिससे हम अगली जिंदगी में दाखिल होते हैं। इज़राइल रूह लेने आते हैं और उस लम्हे से हम एक ऐसी जगह में दाखिल हो जाते हैं जिसे इंतजार गाह कहा जा सकता है। इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक रूहानी दुनिया, ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली है। ये इस दुनिया से मिलती जुलती है जिसे हम जानते हैं, फिर भी इसमें कोई सूरज नहीं है और फिर भी ये रोशनी से भरी है। ये इस दुनिया से ज्यादा वसी, ज्यादा रोशन और ज्यादा पुरसुकून है। अगर आप कभी इस वसी कायनात में अकेला महसूस करते हैं तो याद रखें, ये चैनल आपके लिए बनाया गया था। इससे पहले कि ये वीडियो YouTube के लामुतनाही समंदर में गायब हो जाए, इसे आप जैसे दूसरे लोगों तक पहुंचने में मदद करें। हर नया सब्सक्राइबर हमें ज़रूरतमंद एक और दिल तक पहुंचने में मदद करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। अल्लाह करे कि आपकी हिमायत एक और रूह तक रोशनी फैलाए। इस वीडियो को 2 एपिसोड में बनाया गया है। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।